बेसिकली फंक्शंस करने सॉरी कोऑर्डिनेशन एज एसेंस करना शुरू किया था, and then we couldn't pull it off because I wanted you to learn the functions of management first. वीडियो बहुत बड़ा था 24 मिनट का, उसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है, बट मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स डाले थे. अगर किसी ने भी ध्यान से देखा होगा या जिन लोगों ने भी ध्यान से देखा होगा उनको समझ में जरूर आया होगा. यस और नो? यस सर. ओके चलो, अभी ये कोऑर्डिनेशन कल हमने शुरू किया था, इसका फटाफट मैं ग्लिम्स दे देता हूँ. Many departments are having many activities, but all activities must be having common direction. The common direction is called organizational goal. So the process by which manager synchronizes activity of different department for achieving common goal, that is called coordination. ये हमने सीखा था. Yes or no everyone? यस सर. फिर बाद में हमने ये देखा था, there is a myth about the people that previously people used to believe that coordination is a separate function of management. यानी planning, organizing, staffing, directing, controlling के बाद coordination perform होता है. But that's not the true fact. Coordination is not separate function. Coordination is force which binds other function. So actually coordination is the essence of management, or coordination is actually called ingredients of management. So क्यों कोऑर्डिनेशन को इंग्रेडिएंट बोला जाता है, दैट्स व्हाट वी हैव टू सी, और उसी क्वेश्चन को हम लर्न कर रहे थे. कैन आई रिमूव दिस स्लाइड आल्सो एवरीवन? यस सर. So here we were learning that coordination is an essence of management. So in 5 functions we will see how coordination is available. पहला function says in planning coordination is available or coordination is required between organizational goals and departmental goals. तो जो कंपनी का गोल होता है उसको ऑर्गेनाइजेशनल गोल बोलते हैं, और छोटे छोटे जो गोल्स होते हैं उसको डिपार्टमेंटल गोल्स बोलते हैं, जैसे प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केट. इन सबको अचीव करने के लिए बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है. सो इसीलिए इन प्लानिंग कोऑर्डिनेशन इज नेसेसरी बिटवीन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड डिपार्टमेंटल गोल्स. कंपनी का गोल और डिपार्टमेंट के गोल अलग अलग डायरेक्शन में नहीं चल सकते. आर यू डन विद दिस पार्ट एवरीवन? Everyone, please reply. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Now we are at second thing, that is called organizing. So let's see how it is working in organizing. In organizing, coordination is required between resources and activities to be performed. कल जब आपने ये वीडियो देखा होगा, या आज अगर आपने वीडियो देखा होगा, तो आपने उसमें देखा होगा कि we require resources and activities to achieve the plan in action, जो organizing की definition में लिखा था. So in organizing, coordination is also required for resources and activities to be performed. Resources मतलब man, money, machine, material, और activities मतलब जो plan हमने decide किया है उसको perform करने के लिए कितनी number of activities लगेगी. So in organizing, coordination is also required between resources and activities to be performed. अगर तुम्हें ये idea आ जाएगा कि plan को perform करने के लिए 10, 15, 20, 200 activities लगेगी, तो उसके हिसाब से आप रिसोर्सेज भी प्लान कर पाओगे. इसलिए रिसोर्स कितने चाहिए और एक्टिविटीज कितनी है, उसके लिए आपको ऑर्गेनाइजिंग में कोऑर्डिनेशन जरूरी है. सो इन ऑर्गेनाइजिंग आल्सो कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड बिटवीन रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म. लर्न भी करते जाना, समझते भी जाना, क्योंकि तुरंत मैं टाइम दूंगा आपको रिवाइज करने का और फिर हम सीधा आगे जाएंगे. थर्ड, in staffing, coordination is required with respect to recruitment, selection and training of employees. Staffing का अगर आप definition पढ़ रहे थे functions of management में, I am pretty sure third sub point में आपको ये word दिखाई होगा, recruitment, selection and training. मैंने आर्मी का भी एग्जांपल लिया था और आईसीआईसीआई बैंक का भी एग्जांपल लिया था. क्या आप लोगों ने इस पे ध्यान दिया था? हाँ सर. ना फिर उनको यस एग्जैक्टली. मैंने ऐसा बोला था कि एडवर्टीजमेंट हो तो रिक्रूटमेंट बोलते हैं, इंटरव्यू आए तो उसको सिलेक्शन बोलते हैं, फिर काम कैसे करने उसको ट्रेनिंग बोलते हैं. सो इन स्टाफिंग आल्सो कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड बिटवीन रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय. कितने लोगों को रिक्रूट करना है, उनमें से कितने सिलेक्ट हो गए, और सिलेक्ट किए गए लोगों को कैसे ट्रेन करना है. इन तीनों चीजों में कोऑर्डिनेशन जरूरी है. सिंपल वे में अगर हम समझते जाए ना,
तो अभी हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट नहीं सीख रहे हैं, हम ये सीख रहे हैं हाउ कोऑर्डिनेशन इज अवेलेबल इन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट का एसेंस फंक्शन होते हैं और उन सब में कोऑर्डिनेशन कैसे अवेलेबल है हम वही देखने की कोशिश कर रहे हैं. तो इन स्टाफिंग आल्सो कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड विद रिस्पेक्ट टू रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज. मैं तीनों चीजों को वापस रिकॉल करा रहा हूं. In planning, coordination is required between organizational goals and departmental goals. In organizing, coordination is required between resources and activities to be performed. In staffing, coordination is required between recruitment, selection, and training of employees. Are we done till here, everyone? Yes, sir. So let's go to the fourth one. The fourth one is about directing. Let's see how in directing we require coordination. In directing, coordination is required between superior and subordinate for giving orders and instruction. अगर कल आपने वीडियो या आज वीडियो देखा होगा तो आपने देखा होगा डायरेक्टिंग में 5 वर्ड का एब्रीवेशन है. जिसने भी वीडियो देखा होगा क्या वो ट्राई कर सकता है वो एब्रीवेशन बोलने के बारे में? मैं हिंट दे सकता हूं, IGMCL ऐसा मैंने बोला था. Yes, sir. May I try? Yeah, Dhey, please go ahead and try. So instructing, then comes guiding, then counseling, Motivating. motivating, counseling, and leading. That is fantastic. So directing और एक्शन इनिशिएटिंग फंक्शन है. डायरेक्टिंग में आप अपने एम्प्लॉइज को ऑर्डर्स देते हो, तो जो ऑर्डर देने वाला होता है माय डियर फ्रेंड उसको बोला जाता है सुपीरियर, और जो ऑर्डर रिसीव करता है उसको बोला जाता है सबऑर्डिनेट. सो सुपीरियर वांट्स टू गिव ऑर्डर्स एंड ऑब्वियसली फॉर दोज ऑर्डर्स सबऑर्डिनेट वांट्स टू गिव सजेशन. सो बेसिकली सुपीरियर और सबऑर्डिनेट में कोऑर्डिनेट होना चाहिए. जो ऑर्डर सुपीरियर सबऑर्डिनेट को पास कर रहा है सबऑर्डिनेट उसको समझना चाहिए, और सबऑर्डिनेट उस काम को कंप्लीट करने के लिए अगर कोई डिमांड रख रहा है, कुछ रिक्वायरमेंट रख रहा है जो जेन्युइन है, तो सुपीरियर को उसको कंप्लीट करनी होगी. सो डायरेक्टिंग में 2 लोग होते हैं, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट. सुपीरियर ऑर्डर देता है, सबऑर्डिनेट वर्क के रिलेटेड सजेशन देता है, और इसीलिए दोनों में कोऑर्डिनेशन जरूरी है. मान लो सुपीरियर ऑर्डर दे के हट जाए और सबऑर्डिनेट कभी भी नेसेसरी सजेशन ही ना दे, तो आई रिपीट ऑर्गेनाइजेशन का डिजास्टरस लेवल हो जाएगा. So in directing also coordination is required between superior and subordinate for giving orders and suggestions. Lastly, controlling में हमें coordination कैसे चाहिए? In controlling, coordination is required for finding deviation and taking corrective action for next year of planning. कल के वीडियो में मैंने 200 ट्रक्स का बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था कि 200 ट्रक्स में 220 भी अचीव हो सकता है, 180 भी अचीव हो सकता है, बट 180 से 200 का जो गैप है उसको डेविएशन बोलते हैं. वीडियो देखा है वो लोग हाँ या ना बोल सकते हैं? हाँ सर. हाँ. एग्जैक्टली. सो डेविएशन कितना है और कब करेक्टिव एक्शन लेना है ये फाइंड करने के लिए कंट्रोलिंग में कोऑर्डिनेशन की नेसेसरी होती है. जिनको डेविएशन वर्ड ना समझ में आया हो मैं फिर से बता दूं, डेविएशन इज अ गैप इन परफॉर्मेंस. अगर आप किसी को टारगेट देते हो कि आपको 100 स्टेपलर आज के दिन में प्रोड्यूस करने हैं, अगर वो बंदा 120 स्टेपलर प्रोड्यूस कर रहा है तो ये ओवर अचीवमेंट है, इसको डेविएशन मत समझना. बट 100 प्रोडक्शन के सामने अगर वो 80 ही प्रोड्यूस कर रहा है तो 20 का टारगेट अचीव होने से रह गया है, इसीलिए उसको बोला जाता है डेविएशन. सो बेसिकली अगर डेविएशन समझना हो तो इट इज कॉल्ड गैप इन परफॉर्मेंस. सो व्हाई इन कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड? In controlling, coordination is required because we want to identify the deviation अगर कुछ हुआ है तो, and then we want to take corrective action for next year planning, ताकि अगले साल सेम तरह का प्रॉब्लम ना हो. वो एम्प्लॉय जो बेसिकली, हर्ष बहुत आवाज आ रहा है, प्लीज म्यूट कर दो. वो एम्प्लॉय जो बेसिकली 20 स्टेपलर्स नहीं प्रोड्यूस कर पाया था, अगले महीने या अगले साल ऐसी सेम मिस्टेक ना करे, इसलिए हमें करेक्टिव एक्शन लेनी है. सो ऑल इन ऑल एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के अंदर कोऑर्डिनेशन होता है, और कोऑर्डिनेशन एक सेपरेट फंक्शन नहीं है, ये बात इससे प्रूव हो जाती है. कोऑर्डिनेशन एक सेपरेट चीज नहीं है, पांचों फंक्शन को जोड़ने वाली एक कड़ी है, सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो. इसीलिए कोऑर्डिनेशन को एसेंस या इंग्रेडिएंट बोला जाता है. So in planning, organizing, staffing, directing, controlling, everywhere coordination is necessary. Can you please go through this a little faster? I'll give you 1 minute. Then I'll ask anyone.
Sorry. Are we done, everyone? Are we done, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay, 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 okay. So I'll see whom I can ask now. Prince Ahuja, are you there? Yes, sir. Can you say how coordination is required in planning? Sir, in planning, coordination is required between organizational and departmental goals. That's right. Organizational goals and departmental goals. Good. Krish, can you tell me how coordination is required in organizing? Krish Jariwala. Yes, sir. How coordination is required in organizing? Can you please repeat? Uh, sir, by so what you told the question, I forgot. I'm not able to hear you. Pratham Todani, are you there? Yes, sir. Can you tell me how coordination is required in organizing? Yeah. In organization, coordination is required between resources and activities to be performed. I'll just slightly correct you. In organizing, not in organization. Okay. Vinay Sekhani, are you there? Yes, sir. Can you tell me how coordination is required in staffing? Sir, in staffing, coordination is required with respect to recruitment, training of employees and selection. रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ही बोला जाता है. रिक्रूटमेंट के पहले, रिक्रूटमेंट के बाद ट्रेनिंग और ट्रेनिंग के बाद सिलेक्शन नहीं होता, इसलिए सीक्वेंस याद रखा करो. कुशाग्र, कैन यू टेल मी हाउ कोऑर्डिनेशन इज हैपनिंग इन डायरेक्टिंग? In directing, coordination is required between superior and subordinate for giving orders and giving suggestions. Good. Suggestions. Janil, can you tell me how coordination is required in controlling? Yes, sir. In controlling, coordination is required for finding deviation and taking corrective action for next year planning. Very good. So with that said, my dear friends, now we are reaching to next question, characteristics of coordination. ये एक easy type of question है, ज्यादा टाइम इसको नहीं लेना चाहिए हमारा. सबसे पहला, coordinate integrates group efforts. इंटीग्रेट करना मतलब सिंक्रोनाइज करना, सिंक्रोनाइज करना मतलब कलेक्टिव करना, कलेक्टिव करना मतलब साथ में लाना. ग्रुप एफर्ट्स मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट्स अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं, बस सबको साथ में रखने का काम कोऑर्डिनेशन का है. इसका एक लाइन का एक्सप्लेनेशन है. कोऑर्डिनेशन यूनिफाइज diverse activities into purposeful work activities. It gives common focus to group efforts. पहली लाइन को पढ़ने की कोशिश करो. वर्ड्स थोड़े हैवी लग सकते हैं, आई डोंट डिनाई देम, बट समझने में उतना डिफिकल्ट नहीं है. I read it out once again. Coordination unifies diverse activities into purposeful work activities.
डाइवर्स एक्टिविटी क्यों बोला जाता है? क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग टाइप की एक्टिविटी करते हैं. मैं कल भी आपको बता रहा था, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग में लगा है, फाइनेंस वाला फंड मैनेजमेंट में लगा है, मार्केटिंग वाला प्रमोशन में लगा है. सो वो लोग अपने अपने काम में लगे हैं. बट ये डाइवर्स एक्टिविटी को पर्पसफुल एक्टिविटी बनाना जरूरी है. पर्पसफुल मतलब उनका पर्पस तभी अचीव होगा जब उनको पता होगा कि हम सब लोग एक कॉमन गोल के लिए काम कर रहे हैं. हम तीनों के बंगले अलग अलग जगह पे नहीं है, हम तीनों के बंगले एक सोसाइटी का पार्ट है. सो बेसिकली हम तीनों डिपार्टमेंट एक ही ऑर्गेनाइजेशन में है, दो हम अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं, बट हम सबका कॉमन गोल है, और यही कॉमन गोल लाने का काम है कोऑर्डिनेशन का. सो कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स. ग्रुप में अलग अलग एफर्ट्स लगते हैं, सबको कोऑर्डिनेट करना और सिंक्रोनाइज करने का काम कोऑर्डिनेशन का है. क्या मेरी बात समझ में आ रही है गाइस? Yes, sir. एवरीवन, yes or no? Yes, sir. Okay, okay. Now I'm going to second one. It ensures unity of action. Coordination खाली integration करके रुक नहीं जाता है, वो ensure करता है कि सारे डिपार्टमेंट की एक्शन एक ही यूनिटी में चलती हो. So it generally acts as a binding force and ensures that the actions of all departments are in the direction of achieving common goals. So coordination को जैसे हम essence बोलते हैं, ingredient बोलते हैं, उसी तरह से याद रखना होता है कि coordination ensures unity of action. तो यूनिटी ऑफ एक्शन को एंश्योर करने के लिए कोऑर्डिनेशन एक बाइंडिंग फोर्स बन जाता है और एंश्योर करता है कि एक्शंस ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स आर इन द डायरेक्शन ऑफ अचीविंग कॉमन गोल. प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन करता रहे, मना नहीं है. फाइनेंस वाला फंड मैनेजमेंट कर ले, मार्केटिंग वाला प्रमोशन कर ले, बट ये सारे डिपार्टमेंट को एक ही डायरेक्शन दी गई है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ अचीविंग कॉमन गोल. सो पहला फीचर है इंटीग्रेट द ग्रुप एफर्ट. इंटीग्रेट करना मतलब डाइवर्स एक्टिविटीज को पर्पसफुल एक्टिविटी बनाना, and then it ensures unity of action. That means becoming a binding force and ensuring that all actions of departments are going in a common direction, the direction of achieving common goal. And giving you almost 1 minute everyone, please first and second को ध्यान से पढ़ लो. I'll ask anyone to repeat first and second point. That's why I'm asking. Vinay, can you talk to me about first point? What was the first point? Yes, sir. It integrates group efforts. Good, 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 good. That's good. Coordination unifies diverse activities into purposeful work activity. It gives common focus to group efforts. Chalo, good. Second, it ensures unity of action. Siddharth, can you tell me on this? Siddharth Soni? Yes, sir. It generally acts as a binding force and ensures that actions of all the departments are in direction of achieving common goal. You always give me positive answers. Very good, yaar. Very good. Chalo. Krishna Arora, are you there? Yes, sir. I'm asking you to read third point, which I will display, and then try to explain for us. Can you do that? Okay, sir, I will try. That's the spirit.
Third point, it is a continuous process. It's not one-time function. It generally initiates at planning stage and lasts till controlling. After that, also it sets the stages of new year plans. Hence, it is continuous. Take your time for a minute and then try to explain us. Sir, it starts as planning stage and it lasts till controlling. You know that management has 5 functions, yes or no? Yes, Starting sir. from planning, organizing, staffing, directing, controlling. Controlling. Yes, sir. Yes. So basically it starts from planning stage and it will remain continue till controlling stage. But then even at controlling stage, it will not come to an end. At controlling stage, it will try to set the stages for next year's plan. Hence, the task of coordination is quite continuous. समझ में आया? Yes, sir. Good, good, good. Rhythm, are you there? Yes, sir. Fourth is your task. Coordination is all pervasive. Coordination is applicable to all the employees of all levels of all the departments of the organization. If coordination is not made applicable at all the levels, then it would always result in overlapping. Take a minute to explain it. अगर मैनेजमेंट ऑल परवेसिव है तो कोऑर्डिनेशन भी ऑल परवेसिव है. Yes, sir. Coordination all employees सबके ऊपर applicable होता है जैसे मैंने. True. Sir, if it is not applicable to all the levels or all the employees, then activities में overlap problem हो सकती है फिर. Yeah, I'll explain. See, coordination is applicable to all employees, to all levels at all department. Top level से लेके middle level से लेके operational level, सबको एक दूसरे के साथ coordinate करना है. और अगर मान लो अगर आप coordinate नहीं करते हो तो क्या होगा? तो भाई activities का overlap होगा. Overlap of activity मतलब क्या? जो एक्टिविटी टीचर को परफॉर्म करनी है वो प्रिंसिपल परफॉर्म कर रहा है और प्रिंसिपल को जो एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करनी है वो एक्टिविटी टीचर परफॉर्म करके दे रहा है. किसी को पता ही नहीं कौन सी एक्टिविटी किसको करनी है. हो सकता है एक ही एक्टिविटी 2 बार 3 बार रिपीट हो रही है जबकि वो एक ही बार परफॉर्म करनी थी. उसकी वजह से क्या हो रहा है? मैन पावर वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, एफर्ट वेस्ट हो रहा है और अगर एक्टिविटी में पैसा लगा है तो मनी पार्ट भी वेस्ट हो रहा है. सो वी डोंट वांट ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज. इसलिए कोऑर्डिनेशन ऑल परवेसिव है. अगर हर लेवल पे कोऑर्डिनेशन होगा तो एक्टिविटीज का ओवरलैप रुक सकता है. सिंपल एज दैट. यस सिद्धार्थ? No, sir. By mistake. That's okay, beta. Now, point number 5, coordination is the responsibility of managers. I'll explain this point once I read completely and then you'll easily understand it. Coordination is the function of every manager in the organization. Top management has to coordinate with middle level management. Middle level management interacts with top level and operational level. And operational level coordinates with middle level management. Now, I remember it in a simple way. 1 coordinates to 2. 2 coordinates to 1 and 3. 3 coordinates to 2. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. 1 coordinates to 2 मतलब क्या? Top level to middle level. Yes. 2 coordinates to 1 and 3. Top level and operational level. हाँ तो middle level coordinates with top level and operational level. And 3 coordinates to 2. Operational level to middle level. हाँ तो खाली इस क्वेश्चन को समझने के लिए या इस कंटेंट को समझने के लिए दिस इज मच बेटर वे. 1 to 2, 2 to 1 and 3, 3 to 2. Anyway, and coordination is a deliberate function. Guys, deliberate word का मतलब होता है intentional, forceful function. Let's see. The function of coordination is being executed with the deliberate efforts of the managers. Deliberate मतलब क्या? जो आपका superior होगा ना
वो काम करने के लिए आपको लिटरली फोर्स कर सकता है, बियॉन्ड वर्किंग आवर्स नहीं, बट जो काम दिया गया है, जो आपको करना है, और अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो उसके लिए वो आपको डेलिबरेटली फोर्स करेगा। देखो, कोऑर्डिनेट एंड कोऑपरेट दो अलग अलग वर्ड होते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, मैं ऑर्गेनाइजेशन में हूं, मेरा सुपीरियर यहाँ पे लोकेश है, लोकेश ने क्लियरली बोला कि ये टास्क हिमांग आपको शाम तक करके जाना है, सो ही इज फोर्सिंग मी कि ये काम कंप्लीट हो जाना चाहिए आज के दिन में। हाँ, ये डिफरेंट चीज है, काम खत्म हो चुका है, ऑफिस आवर्स ओवर हो चुके हैं, मैं निकल रहा हूं बाहर, आई एम नॉट एबल टू फाइंड माई बस, और यू कैन से द बस फॉर द home has already departed, I have to find my own means. Meanwhile, Lokesh as a boss comes out in his car and he offers me a lift that I'll drop you down. This is cooperation. अब यहाँ पे बॉस वाला सिस्टम नहीं है, वो ह्यूमनली स्पिरिट में समझ रहा है कि काम में लेट हो जाने की वजह से आज वो बेचारा अपनी बस छोड़ चुका है या उसकी बस छूट गई है, तो हियर आई वांट टू हेल्प इट। कोऑपरेशन मतलब किसी को विलिंगली हेल्प करना, कोऑर्डिनेशन मतलब डेलिबरेटली फोर्स करना। हो सकता है मुझे लोकेश बिल्कुल पसंद ना हो, that could be the case, but then who cares, he's my boss and he can force me for that work. So the function of coordination is being executed with the deliberate efforts of manager. मतलब लोकेश ना ये एक्सक्यूज नहीं दे सकता कि हेमांग ना मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहा है तो मैं तो उससे काम नहीं निकाल पाऊंगा। समझो अगर लोकेश मेरा बॉस है तो कोई लोकेश का बॉस होगा। मान लो सिद्धार्थ लोकेश का बॉस है तो सिद्धार्थ तो लोकेश को झाड़ देगा, अगर हेमांग तेरी नहीं सुन रहा है ना तो तू काम कर, तू जॉब छोड़, मैं तेरी जगह किसी और को लाता हूँ। So everyone loves his job, and in that situation, coordination थोड़ा deliberate function बन जाता है। Whether people in the organization cooperate or not, but it's a duty of manager to coordinate with them. आप cooperate करो तो coordination smooth हो जाएगा, but अगर आप cooperate नहीं करोगे, I repeat, अगर आप cooperate नहीं करोगे तो भी आपका superior आपको काम करने के लिए force कर सकता है। So yes, that's why coordination is called deliberate function of management. समझ में आया एवरीवन? Yes, sir. फिफ्थ एंड सिक्स्थ एक बार खाली देख जाओ। ऑलमोस्ट 30 सेकेंड्स जैसे हैं। Okay. Prince, can you give me all the titles of characteristics? Yes, sir. Yep. Coordination is all pervasive. One. Coordination is a responsibility of managers. Two, I'm counting for you. Sir, all the 6. Yeah, beta. Coordination is deliberate function and sir, rest 3, sir. चलो हम पहले से स्टार्ट करते हैं, कोई बात नहीं। It integrates group efforts. Provide unity of action. It ensures unity of action. And sir, I don't remember the third one. Continuous. या तो आप कंटिन्यूस भूल गए या ऑल परवेसिव भूल गए, कोई बात नहीं एवरीवन, मैं 6 के 6 रिकॉल करा देता हूं। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड्स यूनिटी ऑफ एक्शन, कोऑर्डिनेशन इज कंटिन्यूअस, coordination is all pervasive, coordination is the responsibility of managers, and coordination is a deliberate functions. Integrate group efforts में आपको याद रखना है कि diverse activity को हम purposeful activity बनाते हैं। Unity of action में हम ऐसा याद रखते हैं कि all department needs to be given one common direction. Continuous मतलब starts from planning and still controlling, still not over, still bridging gap for new years of planning. All pervasive मतलब applicable to all employees, all levels, all department, otherwise overlapping. Responsibility of all managers में याद होगा मैंने आपको ट्रिक दी थी 1 to 2, 2 to 1, 2 to 1 and 3 and 3 to 2.
एंड डेलिब्रेट फंक्शन में आपको याद रखना है कि इट्स अ फोर्सफुल फंक्शन, इट्स अ फंक्शन विच इज डन विद एन एग्जीक्यूशन, वेदर इन एन ऑर्गेनाइजेशन यू कोऑपरेट और नॉट, मैनेजर विल कोऑर्डिनेट विद यू. समझ में आ रहा है एवरीवन? Now we will see, yes or no. I am not getting replies. Yes, sir. Yes, sir. Now we'll see importance of coordination. This is simple topic, so I'll take it little with the speed, not more speed, क्योंकि थर्ड पॉइंट में ही समझाने जैसा टाइम है, बाकी सब आप आगे देख चुके हो. ग्रोथ इन द साइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. डू यू रिकॉल ग्रोथ करके एक ऑब्जेक्टिव होता है जो हम आगे सीखते थे? Yes, sir. Yes, sir. मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स में होता था सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ करके. हाँ. बस वो वाला ही कंटेंट यहाँ आने वाला है. Growth means increased number of activities, increased number of people performing activities, increased output because of that and increased profit. Growth इसी तरह से measure होता है. जब आपकी एक्टिविटी 100 से 200 हो जाती है तो 200 एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए एक्स्ट्रा पीपल लगते हैं. 200 लोग अब काम करते हैं तो आउटपुट बढ़ता है और आउटपुट बढ़ने से प्रॉफिट भी बढ़ता है. Along with that, it is also possible that confusion may also increase in the organization. क्योंकि जितनी एक्टिविटीज बढ़ती है, जितना ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता है, तो ऑर्गेनाइजेशन में कंफ्यूजन बढ़ने के चांसेस आ जाते हैं. इन दैट सिचुएशन कोऑर्डिनेशन इज मस्ट. जितना ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता जा रहा है, उसको हैंडल करने के लिए कोऑर्डिनेशन की एसेंशियलिटी होती है, वरना ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल करना डिफिकल्ट होता है. ये पहला पॉइंट है सिंपल वे में. Growth means activity, people, output, profit, everything is increasing. But along with that, confusion may also increase. In that situation, if you want to have smoothness in the organization, coordination is must. Second, functional differentiation. That means activities of different department is divided into several specialized functions, such as purchase, production, finance, sales, marketing. मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ऑर्गेनाइजेशन में तरह तरह के डिपार्टमेंट होते हैं. परचेज है, प्रोडक्शन है, फाइनेंस है, सेल्स है, मार्केटिंग है, और सारे डिपार्टमेंट अलग अलग एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं. कोई सेम एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करता. कोऑर्डिनेशन synchronizes the activities of all departments so that we can achieve organizational goals. कोऑर्डिनेशन का काम ही यही है कि सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट में जो एक्टिविटीज चल रही है उनको सिंक्रोनाइज करो, उनको क्लब करो, उनको इंटीग्रेट करो और उन सबको कॉमन गोल दो. और कॉमन गोल कौन सा है? ऑर्गेनाइजेशन का गोल. ये इंट्रो में आ चुका था, यानी ये जो कोऑर्डिनेशन का फंक्शनल डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है वो, और ये हम ग्रोथ वाले ऑब्जेक्टिव में सीख चुके थे. बस खाली कोऑर्डिनेशन के इंपॉर्टेंस की लाइंस इसमें ऐड की है. आई एम गिविंग ऑलमोस्ट 1 minute. यू काइंडली गो थ्रू दिस. सर कितने इम्पोर्टेंट है? लास्ट है इसके बाद, लास्ट पॉइंट. मेहुल अभी 40 मिनट नहीं हो रहा, थक गए. सर अभी 2 क्लास और थी इसके पहले इको की. आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आई एम जस्ट डूइंग माय रेगुलर स्टफ. हाँ. Can we move to last function, last importance, everyone, if you allow? Yes, 1 minute, sir. Yeah, I can wait. Read it. Done? Yes, sir. Chalo. Last and final point of the entire chapter, specialization. Specialization is vital important for any organization to survive in a competitive world. देखो आज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्पेशलाइजेशन अचीव करना चाहता है, वरना आज का वर्ल्ड इतना कॉम्पिटिटिव है कि आपका सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं है. एंड दैट्स व्हाई कंपनी अपॉइंट स्पेशलिस्ट इन देयर ऑर्गेनाइजेशन. स्पेशलिस्ट मतलब क्या? जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो हम IITians को अपॉइंट करना प्रेफर करेंगे. अगर हम सिंपल मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो सारे 20 स्कूल के MBA एक्सपर्ट्स हमें चाहिए.
सो इनको स्पेशलिस्ट बोला जाता है, जिन्होंने अपनी फील्ड में मास्टरी हासिल कर रखी है. Specialization is vital important in an organization to survive in a competitive world, and that's why company always appoints specialists. However, these specialists work as per their area of expertise, which may create difference among them and others. Organization में सिर्फ specialized employees नहीं होते हैं, दूसरे common workers भी होते हैं. और जब आप specialized लोगों को काम करना जब आप specialized लोगों को अपॉइंट करके उनसे काम करवाना शुरू करते हो ना, तो दूसरे वर्कर्स से थोड़े हार्ड वे में बिहेव करते हैं, और इसकी वजह से उनमें और दूसरे वर्कर्स में डिफरेंस क्रिएट होता है. Coordination helps establishing one-to-one relation between specialized and non-specialized staff. यहाँ जो coordinating manager होते हैं, वो specialized employees को बताते हैं कि आपको workers से कैसे deal करना है, so that आप उनसे काम निकलवा सके. Same time workers को भी बताया जा सकता है कि specialized को हमने क्यों रखा है, क्या इनकी खूबी है जिसकी वजह से हमें helpful होने वाले हैं, so that everyone understand each other's importance. तो इसीलिए specialization necessary है. Please go through this. मीटिंग में एंड इन 1 मिनट, बट मुझे 2 मिनट अनाउंसमेंट के लिए भी आप सबको वापस बुलाना पड़ेगा. आई एम सेइंग फॉर 2 मिनट्स ऑल्सो. सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज ज्वाइन. आई अश्योर यू विद इन 5 मिनट्स आई विल रिलीव ईच वन ऑफ यू विद इन 5 मिनट्स. जस्ट रीड टिल द टाइम दिस मीटिंग कम्स टू एन एंड. ये मेरा अश्योरेंस है, 5 मिनट्स में मैं आपको छोड़ दूंगा.